Welcome to RT MPC classes. RT MPC classes. Welcome to RT MPC classes. What will you learn here? You can learn here maths, physics, and chemistry. So all the concept will be crystal clear here. If you are preparing for ITJ exam or NEET exam, so just you can join RT MPC classes. Any student, if you are preparing for JEE exam, so first we need to know about JEE exam. JEE every year they are conducted in mostly in the month of January and April. So two session. Session 1 January, session 2 April. So now first session is the January. Think about the January month. In that JEE is conducted. First is JEE mains. After then, if you are selected, then you will write to the JEE advance. JEE mains conducted main exam. Two part. Session 1 S1 and S2. Session 2. Session 1 will be conducted in a month of January. And session 2 will conduct month of April. So if you are qualified session 1 or any session 2, anyone if you are qualified, then you are ready to write the JEE advance. If you are get the good rank in JEE advance, then your admission will be in the top IIT colleges or IT college according to your rank. Apart from that, the JEE mains rank is valid for top private engineering college, and this rank is valid for NIT college, National Institute of Technology, NIT. So what is your focus right now? First focus on session 1 JEE mains. Get the good rank or score more and more. So first mains exam, JEE mains, main. In that paper is maths, physics and chemistry. Maths, physics and chemistry. Maths 100 marks, 100 marks. Physics also 100 marks. Chemistry also 100 marks. Maths, physics, chemistry 100 marks. The number of question in the maths and physics, 20 question is MCQ, like MCQ. 20 question, 20 is the MCQ, and 10 question integer type. 10 question is integer type. MCQ 20 question, 10 question is integer type of question is the 10 question. In that 10 question, you have to attempt any 5. You have to write any 5. You can neglect the 5. So total 30 question you have to write the 15 only. But here MCQ all question is compulsory. Means you have to attempt all the question. But here only 5. So 20 plus this 5. Compulsory 5. Any 5 you can attempt. So 20 plus 5 is total number of 25. So total number of maths is 25 question. Physics is also 25 question. Chemistry is also 25 question. So total number of question is 70. You have to attempt total number of question is 70. Multiplied by 4. Each question carry 4 marks. The total number is 300. So count 1, 2, 3. So 300. 300 marks. 300 marks. 100. Maths 100, chemistry 100, physics 100. So 300 marks if you obtained, you will be the All India first rank JEE mains. Just we are telling the one example. So maximum marks is 100. But some student is not getting that much mark. What is the qualifying marks? If just I qualified in the JEE mains,
and we are ready to go JEE Advanced because my main focus is JEE Advanced. I want to be a IITian. I want to be a IITian. If you want to be a IITian, what will you do? Qualify JEE Mains. Whatever the rank, not a problem. Just at least qualify the JEE Mains and score good in JEE Advanced. So every student, most of the students, they are thinking JEE Mains minimum. So minimum is around 90. This is the range one. 90 marks. 90 marks is the range one. Like 3 3 is 30%. 90 is what? 30%. 30% marks is the just minimum around. Every year it will be a change. 85, 78, like that everywhere. According to category also it will be the change. So just you calculate the 90 marks is the qualifying marks. If you are getting the 90 means you are JEE Mains qualified. You JEE Mains qualified already. And you are ready to write the JEE Advanced. Minimum marks is 90. Just 30%. Can you get 30% marks? अरे CBSE ICSE बोर्ड वाले सब तो तुम लोग 30% तो नथिंग इधर, बट इधर एटलीस्ट 30 तो लेके आ जाओ. इसमें क्या है, इसमें अगर 30% लेके आते हो तो क्वालिफाई कर जाते हो. अगर 40% लेके आते हो, इफ यू आर गेटिंग द 40% लाइक 120, दिस इज द चांस ऑफ गेटिंग a top private engineering college, top, where you are paying the donation. Some of the students who are getting the top private college with donation 25 to 30 lakhs donation rate, top private college. But if you get the 120 marks, your rank will be the nice and no need to pay the any donation. Directly you will get the, by the counseling you will get the seat. So you are saving the 25 lakhs. This is the minimum criteria. देखो कुछ भी फाइट करने के लिए कम से कम आपको मिनिमम क्राइटेरिया तो फुलफिल रखना होगा ना. कम देखो फाइट करना है कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम ये तो हो जाए ना कि रेस से बाहर ना चले जाऊं मैं. तो कम से कम 90 और 120 तो मेरा रेस है ना. 90 और 120, ये 90 में भी तुमको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे प्राइवेट के, 120 में तो टॉप प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे. तो ये क्या होता है कि कम से कम हम लोग जो फाइट कर रहे हैं ना, तो ऐसा रहता है कि अपना जो क्राइटेरिया होता है कि चलो अब तो हम निश्चित हो गए कि देखो JEE मेंस तो क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके लिए तो डरना नहीं है. अब और ज्यादा तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम मिनिमम तो कर लो. लड़के लोग क्या तैयारी करता है, ये बुक वो बुक, लगता है वो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लेके ही आएगा इसी बार. उसके चक्कर में क्या होता है ये भी नहीं आता. एंड ऑफ द डे आता कितना 20 30 10 मार्क्स 30 मार्क्स 40 मार्क्स ऐसे करके लेगा था, मतलब क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं. तो क्या फायदा 1 ईयर पढ़ने का. पूरी की पूरी तैयारी कर लिए हो, पूरी की पूरी 1 ईयर तुम तैयारी कर लिए हो, और एक साल कोई 2 साल, जो 2 साल पढ़ रहे हैं, इतनी तैयारी करने के बाद कोई 3 साल से भी लगे हुए हैं. तो इतना साल से पढ़ने के बाद अगर तुम क्वालिफाई भी मिनिमम नहीं कर रहे हो तो क्या मतलब है भाई, क्या मतलब है. बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई कर रहे हो, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, लेकिन एंड ऑफ द डे तुमको पूछते हैं कि तुम्हारे पापा के क्वालिफाई किए, नहीं हो पाया, इस साल तो नहीं हो पाया. भाई क्यों नहीं हो पाए, क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाए. 90 मार्क्स ही तो चाहिए क्वालिफाई करने के लिए. 120 में टॉप प्राइवेट कॉलेज में जाता, तो इतना मेंस में क्यों नहीं लेके आ पाए. बिकॉज जब कोई तुम्हारा प्लान नहीं था, स्ट्रेटजी नहीं थी, इसी के कारण ये सब हुआ. अगर तुम्हारे पास स्ट्रेटेजिकल कोई प्लान होता कि हम कैसे पहले मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करें, उसके बाद फाइट करना है, अगर प्लान होता ऐसा तो तुम कर जाते, तुमको दूसरी बार ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं रहती. तो अगर कोई लड़का अभी तैयारी कर रहा है तो उनको ये सबसे पहला प्राइमरी थिंग होता है कि उसे मिनिमम जो क्राइटेरिया है, जैसे होता है ना भाई 90% आया ना, कम से कम फेल तो नहीं करना ना. CBSE बोर्ड में ये तो रख के चलते हो ना कि फेल तो नहीं करना, वो काला धब्बा लग जाएगा कि बोर्ड में फेल गए. उसी तरह यहाँ पे भी एक काला धब्बा लग जाएगा अगर तुम 90 नहीं लेके आ रहे हो, 30% भी नहीं लेके आ रहे हो, मतलब डिस्क्वालीफाई. क्वालिफिकेशन से पहला बात है कि क्वालिफाई कर जाना. तो ये सब कैसे क्राइटेरिया होता, कौन कौन से चैप्टर हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे, कौन कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करेंगे. ऐसा चैप्टर इसमें है कि मतलब मैथ में ही पढ़ना है. मैथ में क्या है, देखो मैथ में क्या पढ़ना है तुमको, मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री में अभी तुमको कितना 30 मार्क्स लाना था.
तो 10 क्वेश्चन करेंगे तो 40 मार्क्स आ जाएंगे। अगर 10 क्वेश्चन कर दिए तो कितना 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन कर दिए तो 120 मार्क्स आ गए। कम से कम हम 10 क्वेश्चन तो सिक्योर कर ले मैथ का, 10 क्वेश्चन तो केमिस्ट्री का, 10 क्वेश्चन तो फिजिक्स का सिक्योर कर ले, 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, अरे 10 क्वेश्चन तो सिक्योर कर ले। ये 10 क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। वो 10 क्वेश्चन कहां से बनेगा? जो इजी एरिया है, जो इजीली अंडरस्टैंडिंग होता है। अभी देखो कि आईआईटी में ऐसा कुछ नहीं है कि तुमको पूरा का पूरा वो सबसे डिफिकल्ट वाले ही क्वेश्चन देते हैं, इजी भी देते हैं। तो वो इजी वाला एरिया किधर है, उस पे पहले फोकस करते हैं, जो कि इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा और एग्जाम में जाएंगे तो उससे क्वेश्चन बनेगा। वो तुम्हारा ब्रेन का टेस्ट लेने वाला क्वेश्चन नहीं देता, बस अगर तुम हार्ड वर्क कर रहे हो उसके बेस पे तुमको दे रहा है। तो उतना एरिया तो कर लो, कौन कौन से चैप्टर है जो कि इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आना ही आना है। वो 10 मार्क्स वाले जो है ना 10 क्वेश्चन के लिए जो है, ये मैथ में कितने कम से कम 22 चैप्टर होंगे, मोर देन 22, उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे कंपलसरी आएगा और बन भी जाएगा तुमसे प्रॉब्लम, मतलब वो क्वेश्चन भी आएगा और क्वेश्चन बनेगा भी तुमसे। दिमाग बहुत ज्यादा लगाने वाला वो उसमें नहीं रहता। ऐसे चैप्टर का सिलेक्शन कैसे करेंगे मैथ में से, ऐसे चैप्टर फिजिक्स में से कैसे करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट फॉर द जेई है, और ऐसे केमिस्ट्री में से कैसे करेंगे। तो ये सब जो होता है, कैसे हम लोग सिलेक्शन करेंगे चैप्टर का, इसके लिए आप हमारे क्लास में जुड़े रहे तो हम आपको बताएंगे कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन से है, जिससे कि क्वेश्चन आप अगर टच किए तो बनेगा ही बनेगा, छूटेगा ही नहीं। अगर पढ़ लिए, थोड़ा बहुत ही अच्छा से पढ़ाई कर लिए तो वो सब क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। जेई में रहता है कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन देते हैं कि जो डिफिकल्ट तुम्हारे ब्रेन को टेस्ट करने के लिए, तो वो उसका अलग एरिया है। तो वो चैप्टर को तुम ठीक है उसकी भी तैयारी करो, लेकिन ऐसा चैप्टर सब लोग जिससे कि जैसे सीबीएसई में कुछ चैप्टर पढ़ के गए उसे कंपलसरी याद आता है, उसमें बन भी जाता है, उस लेवल की चैप्टर भी है ना, जिससे कि सीबीएसई लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड जो तुम्हारा बोर्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाता है, वैसे जो चैप्टर है वो चैप्टर का पहले सेलेक्ट करो और वो चैप्टर की पढ़ाई पहले करो और परफेक्ट कर लो चैप्टर को। तो परफेक्ट का मतलब कि पहले तुम सिक्योर जोन में आ जाओ 120 वाला में। अब 120 तुमको आ गया है, अब रहा टारगेट क्या है, इसको 150 पे लाने का, और थोड़ा सा बढ़ाते हैं और थोड़ा बढ़ाते हैं 150 में। अब देखो 150 में जैसे आ रहे हो, तुम्हारे एनआईटी के दरवाजा खुलने लग गए हैं, एनआईटी में तुम्हारी एडमिशन अब होना चालू हो गया, इसी में से और थोड़ा लेके जाओ। अब धीरे धीरे बढ़ाएंगे। पहला जो है कि ये इसको सिक्योर कर देना, स्टार मार यहाँ, ये सबसे पहला प्राइमरी स्टार ये है, इतना पहले कर लेना। ये दोनों को जैसे स्टेप हम एक एक स्टेप करके जाते हो, पहला क्या होता है कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड फ्लोर पे, क्या एक ही बार जंप करके चले जाते हो कि फाइनल फ्लोर पे। तो ऐसा अरेंजमेंट करना है तुमको चैप्टर का कि कौन सा चैप्टर सबसे पहले करना है, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद, वो जो रिलेशन होता है चैप्टर का वो सब देखो। अभी तुम लोग को नहीं आता होगा, लेकिन ये सब प्लान करना होता है, या तो तुम खुद से करो। अब इंस्टीट्यूट में तो तुम्हारे टीचर वैसे करते नहीं, तुम्हारे जो पर्सनल टीचर होंगे, जो टॉप लेवल के टीचर भी है, तुम लोग बहुत स्टूडेंट हो जो कि हायर करके रखे हुए हो कि पर्सनल टॉप टीचर, क्योंकि हैदराबाद और टॉप सिटी जितने भी हैं, जयपुर हो गए, तुम्हारा दिल्ली हो गया, यहाँ सब में क्या होता है कि बड़े बड़े सिटी में बच्चे को एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, उसके अलावा उनको एक पर्सनल ट्यूटर दिया जाता है जो कि उसको प्रॉपर गाइडलाइन करते हैं। और इंडिया एंड चाइना में ट्विटर का बहुत रोल है, बहुत रोल है, क्योंकि सिंगल टीचर सिंगल स्टूडेंट पे फुल फोकस करता है, जो कि एक इंस्टीट्यूट में डिफिकल्ट है, ये नहीं बोलता नहीं होता है, वहाँ डिफिकल्ट है क्योंकि आप प्रॉपर आप टीचर से उतना कनेक्ट नहीं हो पाते हो। जो होता है, जो एक पर्सनल इंडिविजुअली एक टीचर होम ट्यूटर से आप कनेक्ट होते हो, या ऑनलाइन में जो 1-to-1 मीटिंग में जो कनेक्ट होते हो, तो कुछ भी डाउट पूछ सकते हो, कुछ प्लानिंग कर सकते हो, स्ट्रेटेजी प्लान बना सकते हो, वो सब तुमको पर्सनल ट्यूटर ही दे सकता है। और इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि नहीं होता, वो जनरल सबके लिए बोलते हैं, वो तुम्हारे पे वैलिड होगा कि नहीं होगा, तुम्हारा एक अलग प्लान होगा, तुम्हारे फ्रेंड का एक अलग प्लान होगा, उसका एक अलग, इसका एक अलग होता है, सबका इंडिविजुअल पे होता है। बट जब इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं तो जनरली सबको बताया जाता है कि अब जिसके पे वो वैलिड हो जाए उसका प्लान, तो पर्सनल ट्यूटर तुमको जरूर हेल्प करेगा। तो अपने पर्सनल ट्यूटर से अपना एक प्लान बनाओ और खुद भी अपने आप को करो। यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर का है, उससे भी हेल्प लेके अपना एक स्ट्रेटेजी प्लान बनाओ कि इस तरह से हम लोग चैप्टर का सिलेक्शन करेंगे। और पहला क्राइटेरिया में 90 मार्क्स लाने का जो क्वेश्चन है वो पहले करेंगे। 10 क्वेश्चन बना लेंगे तो तुमको 120 मार्क्स आ जाएगा। तो 120 मार्क्स हर एक मैथ में से 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री फिजिक्स में 10 क्वेश्चन को पहले सिक्योर करना, फिर 2-2 क्वेश्चन फिर बढ़ाओ, तो 2-2 कितना हो गया, 6 क्वेश्चन, 6 चौका 24 मार्क्स। तो इस तरह से हम लोग 150 के अराउंड में आ जाएंगे। 6-7 क्वेश्चन और बढ़ाएंगे तो 150 में आ जाएंगे, फिर 180 में आ जाएंगे। अगर 180 में आ गया तुम्हारा, 180 मार्क्स आ गया 300 में, तो तुम्हारा एनआईटी रखा हुआ कोई नहीं काट सकता। अब इसी में कि 200 लेके आओ तो 220 लेके आओ तो टॉप एनआईटी में भी होता है।
ये है मेंस की क्राइटेरिया कि हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे जेई मेंस की। इसके ब्रीफ में और भी कुछ जानकारी लेने के लिए तो अगले वीडियो में भी हम मिलेंगे। तो होता क्या है कि अगर कुछ आप लोग को डाउट हो, जैसे कि आप लोग तैयारी कर रहे हो जेई के लिए, जेई मेंस के लिए, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा डिफिकल्टी आता है, कुछ क्वेश्चन आपको नहीं बनता होगा, आपके फ्रेंड भी नहीं हेल्प कर रहे, और इसको आपके कॉलेज में भी टीचर लोग नहीं कर रहे, इंस्टीट्यूट में नहीं हो रहा है, तो देखो हेजिटेशन करने क्या, जो ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो हमारा यहाँ चैनल है ना RTMPC क्लासेस, यहाँ पे तुम लोग का जो भी डाउट क्वेश्चन है उसको डायरेक्ट वीडियो सोल्यूशन हम बना के अपलोड कर देते हैं। तुम्हारा ही क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन अपलोड करेंगे ये चैनल पे, यूट्यूब पे भी RTMPC क्लासेस इस पे अपलोड कर देंगे। तो तुम लोग अपना जो डाउट होगा वो हमें सेंड कर दो। वो सेंड कैसे करोगे, हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर कर दो। ये नंबर है 9553979427, ये व्हाट्सअप नंबर है, ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है ये हमारा चैनल का, जो कि आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। ये कभी भी कोई भी अगर ट्यूशन रिलेटेड आपको कांटेक्ट करना है, आपको किसी भी टीचर की जरूरत हो तो आपको कांटेक्ट करना है तो आप ये नंबर पे कर सकते हो। गूगल पे भी डाला हो, गूगल पे भी आप गूगल क्रोम में जाके आप सर्च करोगे RTMPC क्लासेस तो आपको मिल जाएगा ये नंबर। वहाँ पे भी फीडबैक भी दे सकते हो आप अपना, और बहुत सारे रिव्यू भी दिए हुए हैं वहाँ पे अदर स्टूडेंट के भी। आप अपना भी शेयर करो, अपना वीडियो कैसा लगता नहीं लगता, वहाँ पे अपना फीडबैक दो। हम क्या है कि आप लोगों के हेल्प के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो यूट्यूब पे जो भी हम लोग होता है तो वो आप लोग को हेल्प के लिए ही पढ़ाते हैं। होता क्या है कि अभी आप लोग क्या मेरे भाई की जैसे हो, तो आप लोग की हेल्प करना, एक दूसरे की हेल्प करना है ना, तो इसीलिए आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे भेज सकते हो। ऐसा अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या डाउट जो पूछते हैं वो सिर्फ हमारे स्टूडेंट ही हमें पूछ सकता है या कोई अदर इंस्टीट्यूट का, तो भाई कोई भी पूछ सकते हो, इंडिया से कहीं भी कोई भी पूछ सकते हो। इवन तो नॉट ओनली इंडिया के बाहर भी पूछ सकते, नेपाल से भी है हमारे बहुत सारे जो जो हमें जानते हैं, हमारे सब्सक्राइबर है, नेपाल से है, कुवैत में भी हमारे सब्सक्राइबर, अमेरिका में भी है, लंदन में हमारे सब्सक्राइबर है, दुबई में है, मोस्ट ऑफ द जगह जहाँ जहाँ भी कांटेक्ट में है, ये सब जगह से भी है हमारे कॉन्टेक्ट सब्सक्राइबर, वो लोग भी हमें डाउट भेजते हैं तो हम उसके लिए भी अपलोड कर देते हैं। आप लोग भी भेजो, कहीं भी पढ़ रहे हो, कोई भी इंस्टीट्यूट में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम आपका हेल्प करेंगे। उसके अलावा कोई अगर ये चाहता है कि नहीं राजेश सर से पर्सनली हम क्लास लें, तो पर्सनली क्लास लेने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास आपको होना, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप करें, तो हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आप हमसे कैसे 1-to-1 मीटिंग के लिए आप जुड़ सकते हो, या 1-to-1 ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास कैसे करोगे, उसके लिए क्या फी है नहीं है, उसकी पूरी डिटेल जो है आपको पर्सनली आपको फोन पे बताया जाएगा। व्हाट्सएप कीजिए या फोन कीजिए, आपको ट्यूशन की जरूरत है तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि क्या ट्यूशन की फी है, कैसा रहेगा नहीं रहेगा, ये सब चीज आपको वहाँ पे पर्सनली डिटेल किया जाएगा। अगर आपको सिर्फ कोई डाउट सॉल्व करना है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं होते, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, जो इसके लिए कोई चार्ज नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा, ये सब पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। तो आप भेज सकते हो अपना डाउट में मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के भेज सकते हो। क्लासेस क्या रह सकते हैं, 8वीं क्लास स्टार्ट होती है, 8वीं 9 क्लास 10 क्लास 11 12 क्लास। इंटीग्रेटेड सिलेबस भी भेज सकते हो, अपने स्टेट बोर्ड का भी भेज सकते हो, स्टेट बोर्ड के सिलेबस के भेज सकते हो डाउट, और CBSE वाले भेज सकते हो, ICSE वाले भेज सकते हो अपने डाउट, और भी अदर बोर्ड जो IB है, ये सब जितने भी है एकेडमिक ईयर के एकेडमिक वाले भी भेज सकते हो डाउट। और उसके जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम IIT JEE के लिए, कोई भी स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए कर रहे हो, वो भी भेज सकते हो अपना डाउट। और इसके अलावा जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हो वो भी अपना डाउट भेज सकते हो, मेडिकल वाले भी। सो नीट एग्जाम के लिए तो वो सब भी अपना डाउट भेज सकते हो, उसके भी सॉल्व हम करके देंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश के साथ। थैंक यू।